Hello and welcome to the Online Science Academy. Here you are with me for the 7th lecture of Chapter 3 Current Electricity. In today's lecture, we will see Kirchhoff's law. For this, we will be understanding first two terminologies related to these two laws. So, the first terminology that we have to understand is loop. What is called as loop in terms of a circuit, electric circuit. So, loop is a closed circuital path, right? So the connection will be such that no ends are open. Okay, so from the network, from the connection, complex connection, you will be taking one part of that connection which forms a closed circuital path, then it will be called as a loop. Okay, because the laws that we are going to study, Kirchhoff's law, that can be applied on these loops or something. If it is a loop, then the application of formula will be in some manner. Okay, if it is an open one, तो फिर उस केस के अंदर कुछ और हो जाएगा, राइट? तो हमें उस केस के अंदर देखना पड़ेगा. तो लूप जो है वो लूप हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा. So what are loops? Loop is a closed circuital path, correct? Then second is junction. जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन? कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके अंदर, उसमें कोई भी हम लोग स्टेशन को जंक्शन नहीं बोलते. किसी भी स्टेशन को जंक्शन बोल दिया ऐसे नहीं होता, बराबर? जंक्शन किसको कहा जाता है? जंक्शन दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स आर गेटिंग कनेक्टेड एट दैट प्लेस. बहुत सारी जगहों से ट्रेन अगर वहां पर आती है, एटलीस्ट 3 जगहों से, तो फिर उसको जंक्शन कहा जाता है. Otherwise, that station, that railway station is not called as a junction. तो यहाँ पर भी सर्किट जो होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट, in that also, if more than 2 conductors are crossing or meeting at one point, then that point only can be called as a junction. Okay, so the point in the circuit. So the junction is the point in the circuit where more than 2 conductors are meeting. Okay, so these two will be utilized when I'll be stating the statements of Kirchhoff's law. Okay, so the first rule given by Kirchhoff is called as Kirchhoff's current law, KCL, or it will be a first law. बराबर? आप तो बोले कि फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लिखो, तो भी आप ये लिखोगे किरचॉफ्स करंट लॉ लिखो, या इसको शॉर्ट में KCL भी कहा जाता है. KCL, अप्लाइंग KCL. ठीक है, तो KCL के अंदर क्या होगा? KCL के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा जंक्शन पॉइंट. एक पूरा नेटवर्क होगा, कनेक्शन जो है वो कनेक्शन कॉम्प्लेक्स जैसा होगा, तो उसको नेटवर्क बोलेंगे. सिंपल कनेक्शन होगा ना, तो उसको नेटवर्क नहीं बोले. एक मैश जैसा होगा कि यहाँ से कुछ कनेक्शन, इधर से कुछ कनेक्शन, फिर वो कहीं पर और कनेक्शन ऐसे होगा, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं, राइट? तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क का एक पार्ट अभी हम लिख लेते हैं. सपोज एट सम पॉइंट, ये यहाँ से कुछ कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, सारे all they are meeting at this point. Okay, so more than 2, लिखा ना, more than 2 conductors are meeting, then this point will be called as a junction, right? जंक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं. जंक्शन के ऊपर क्या होगा? अब यहाँ पर कनेक्शन आगे जैसे होगा उस हिसाब से either the current would be leaving this point or it may be entering, leaving, maybe entering, right? Anything may be there. So I'll first just give the names of those
currents I1, I2, I3, I4 and I5, right? So this is the junction point where we want to apply this first law. So what does it say? That at junction point, the net current is always zero. Net current, right? Current may enter, current may leave, but when you add them, when you take the net current, it will always be a zero one. That means entering current को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं कि ये एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, मतलब पॉइंट के टूवर्ड्स आ रहा है, ये जंक्शन पॉइंट O है, so I4 and I2 and I5, these three are reaching point O. So I2 plus I4 plus I5, and I take that the current which is reaching that point is taken as positive one, then obviously the current that is leaving should be taken as a negative one. So that will be leaving currents are I1 and I3. So I1 minus I3 equals to 0. Or I can also write I2 plus I4 plus I5 equals to I1 plus I3, right? That means entering current equals to leaving current. कभी आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे चार जो है उनकी वैल्यूज गिवन होगी, इतने इतने एम्पियर एंटर हो रहा है, तो I2 के लिए डायरेक्शन गिवन होगी बट उसके लिए वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो आप फाइंड कर सकते हैं सेम चीज अप्लाई करके, टोटल करके 0 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, राइट? ऐसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ जो है वो हम देखते हैं, तो प्रूफ में हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रूफ में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लेना पड़ेगा। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डज इट से? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज that says that charge cannot be accumulated at one point. It cannot be created nor be destroyed. अगर क्रिएट हो रहा होता तो एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट होता, बराबर? डिस्ट्रॉय हो रहा होता तो वहां पर से वो कम हो रहा होता, बराबर? तो हम ये लिखेंगे कि इन आइसोलेटेड सिस्टम तो जो टोटल करंट होगा Q नेट जो होगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ, Q नेट इक्वल्स टू 0, बराबर? तो अब इस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे ये चीज होगी, यहाँ पर कोई भी एक्यूमुलेशन होगा नहीं, दैट मींस व्हाटएवर द चार्ज इज गेटिंग गैदर्ड, दैट मच अमाउंट हैज टू लीव दैट पॉइंट, ओके? सो हाउ मच वुड बी कमिंग? इसमें मैं अगर ले लूं कि I2 की वजह से, I4 की वजह से और I5 की वजह से जो भी चार्ज है वो इधर से लीव हो रहा होगा, बराबर? करंट और चार्ज की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसलिए वो लीव हो रहा होगा। मतलब इन तीनों को मैं एक टाइप का नोटेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दे देती हूँ, तो Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 दैट हैज टू बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3। नाउ I के लिए फॉर्मूला क्या? Q इक्वल्स टू 8 होता है, बराबर? और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला 8, ये काफी बार आपको बताया है, तो Q की जगह पर मैं IT लिखूं फॉर सम टाइम इंटरवल, सो दिस विल बी I2T फॉर द सेम टाइम इंटरवल दैट हैज बीन गिवन टू ईच ब्रांच। सेम टाइम इंटरवल हमने लिया, हर एक ब्रांच में से कितना चार्ज पास हो रहा है उसके लिए, तो T टाइम इंटरवल सेम रहेगा। इतने टाइम इंटरवल में I2 जितना जो करंट है वो क्रॉस कर रहा है, ये आ जाएगा I4T प्लस I5T इक्वल्स टू I1T प्लस I3T. T will be taken out as common
and it will be cancelled out. So I2 plus I4 plus I5 equals to I1 plus I3, which is the same result that has been stated by Kirchhoff as a Kirchhoff's current law as his first law. So this actually interprets the law of conservation of charge, or this is the extension of this charge. बराबर, इसके बेसिस के बगैर हम लोग इस तक नहीं पहुंच पाते. बराबर, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो किरचॉफ्स करंट लॉ को एक्चुअली किरचॉफ्स चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये बेस्ड है, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं. बराबर, तो ये सेकंड लॉ जो है वो सेकंड लॉ हो गया. फिर सॉरी फर्स्ट लॉ हो गया. अभी सेकंड लॉ जो है वो सेकंड लॉ में देखते हैं. किरचॉफ, इसमें वोल्टेज का यूज है तो वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ, KVL कहा जाता है इसको. राइट, तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर अ closed loop is zero. कि एक आपने क्लोज्ड लूप लिया सर्किट का और उसके ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो. बराबर, क्लोज्ड लूप मतलब यहाँ पर बताया लूप, क्लोज्ड लूप होना चाहिए. क्लोज्ड लूप के ऊपर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते जाए तो जब मेजर करते 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 वापस आ जाते हैं उसी पॉइंट के ऊपर, then at that point you will find that whatever the potential that has been observed earlier, the same potential is there. बराबर, तो आप कैलकुलेट करते 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 वापस आओगे तो उसमें कुछ एडिशन होगा नहीं, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल उतना ही पाया जाएगा. मतलब आप ऐड करके इनिशियली कितना था, कुछ ए पॉइंट के ऊपर VA, फाइनली कितना VA, सो VA माइनस VA 0. दैट मीन्स वो जो डिफरेंस है एल्जेब्रिक सम आपने किया, पूरे आप ऐड करते गए एल्जेब्रिक सम किया तो वो एडिशन 0 आएगा. मतलब सिग्मा डेल्टा V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू व्हाट, V का मतलब क्या है, W एक्सटर्नल बाय Q. टोटल वर्क डन जो होगा वो लेना पड़ेगा. यहाँ पर Q तो 0 होगा नहीं, इसलिए W एक्सटर्नल जो है वो 0 होगा. अब आप घूम के वापस कौन से पॉइंट के ऊपर आ गए, उसी पॉइंट के ऊपर आ रहे हो, क्लोज्ड लूप के ऊपर फाइंड कर रहे हैं. तो क्लोज्ड लूप के ऊपर उसी पॉइंट पे आ रहे हो तो उसमें तो वर्क डन कुछ होगा नहीं. बराबर, सेम पॉइंट पर ही वापस आ रहे हो तो पोटेंशियल उतना ही होगा. इसलिए W एक्सटर्नल यहाँ पर 0 होगा. W एक्सटर्नल मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. बराबर, वर्क डन नहीं है तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं हुआ. तो ये क्या चीज इंटरप्रेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बराबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर से KVL एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर से KCL. राइट, तो ये भी आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि इसका बेसिस क्या है, कौन से बेस के ऊपर इसको प्रूव किया जा सकता है या क्या इंटरप्रेट करता है ये. तो ये चीज इंटरप्रेट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड KVL इंटरप्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी इतना जो है वो आप लिख लो, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन है वो एक लेते हैं. और उससे पहले ये लॉ जो है वो अप्लाई करने के, दोनों लॉज अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, आपको एक पूरा नेटवर्क गिवन होगा. वो नेटवर्क में आपको सॉल्व करना होगा. सॉल्यूशन में आपको क्या पूछा जाएगा कि कितना करंट पास हो रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में से, वो फाइंड करो. बराबर, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा. So what would be the steps for solving such type of questions that we will see. उससे पहले आप ये जो पूरा है वो लिखो. चलो,
Now the steps for applying Kirchhoff's law. Steps for applying Kirchhoff's law. You will be given a network. From that, first identify and choose a closed loop. See, you will be given a network where there will be number of loops will be there, closed loop will be there. ओके, तो उसमें से आपको फिर चूज करना है कि अभी मैं कौन से लूप के ऊपर ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना चाहता हूं. करेक्ट. आप किसी भी लूप के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें भी क्या होगा कि आप कोई लूप होगा जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो नोन शायद हो सकती है, बराबर ना. जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस ये पॉलिनोमियल और उस सब में सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करते हो उसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के टाइम पे जो इजीएस्ट होगा, जिसमें सबसे कम अननोन्स होंगे, वो चूज करते हैं ना. तो इसमें वैसे ही कोई क्लोज लूप है जिसमें आपको वैल्यूज ऑलरेडी पता होगी, तो आप वो लूप चूज करोगे. अदरवाइज आप कोई भी एक क्लोज लूप जो है वो चूज कर सकते हैं जिसमें मिनिमम एपरेटस जो है वो कनेक्टेड होंगे. वो अगर आप चूज किया तो ठीक है, बराबर. तो एक ही क्लोज लूप लेने से भी पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो जाएगा. टर्न बाय टर्न अभी जो पूरे स्टेप्स बता रही हो वो पूरा आपको फिर से करना पड़ेगा. देन यू विल कम अक्रॉस 1 or 2 इक्वेशंस, राइट. फिर मैथमेटिक्स आपको आगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और वो सब करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप सम्स करोगे वैसे समझ में आएगा. पहले स्टेप समझ लेते हैं. सो फर्स्ट यू विल हैव टू identify whether it is a closed loop or not, and among those closed loops you choose one. any one आप choose कर सकते हो. इसमें भी कोई गलत कोई और आपने closed loop choose कर लिया closed loops में से, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है. तो identify the loop and then choose any one of them. Then second thing, second आप क्या करोगे कि हो सके तब तक आप जो करंट की डायरेक्शन है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वेल एंड गुड, बट इफ इट इज नॉट गिवन यू विल हैव टू डिटरमाइन कि इन विच डायरेक्शन वेदर द करंट इज पासिंग, बराबर. तो अगर मेरे पास ऐसे है एक कोई बैटरी, तो मैं करंट की डायरेक्शन तो क्या लूंगी, करंट की डायरेक्शन में ये शो करने वाली हूँ, बराबर. हम जनरली कन्वेंशनली क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को लीविंग शो करते हैं, राइट. अब सर्किट के अंदर कभी कभी क्या होगा कि नंबर ऑफ बैटरीज विल बी मोर. एक ही बैटरी खाली नहीं होगी, ज्यादा बैटरी होगी क्योंकि ये नेटवर्क है. तो जनरली आप क्या करोगे कि जो भी हायर वोल्टेज वाली बैटरी है उसकी कंपैरिजन में लोअर बैटरी वाली जो होगी उसमें एंटर होता हुआ, कनेक्शन के हिसाब से देखना, बट फिर भी हायर बैटरी से, हायर वोल्टेज वाली बैटरी से करंट लीविंग शो करो, बराबर. और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे करंट की डायरेक्शन डिटरमाइन करो, बराबर. तो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन ईच ब्रांच such that if possible, या most of the time, हमेशा ऐसे जरूरी नहीं है, most of the time, such that the current is leaving from the battery of leaving from the battery of highest voltage या highest potential difference, बराबर. ये आप चूज करो, उसमें से फिर वो करंट जो है वो लीविंग शो कर दो. फिर आगे ब्रांचेस होंगी, तो ब्रांचेस में आपको पता है 2 पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे, फिर आगे आगे आप देखते जाओ, करेक्ट.
ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड पॉइंट में डिटरमाइन द direction of calculation clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। सी एक क्लोज लूप होगा, बराबर। अब करंट तो कहीं पर भी ऐसे ऐसे कहीं पर भी जा रहा होगा, ठीक है, बीच में रेजिस्टर्स होंगे, बैटरीज होंगी, कुछ भी होगा, सेल्स होगा। तो अब मैं कैलकुलेशन इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करती हूँ, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मैं इस डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो गो इन दिस डायरेक्शन, बराबर। तो कौन सी डायरेक्शन में, यहां से जाऊंगी, फिर मुझे ऐसे ही आगे जाना है, इधर जाके फिर ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। आई विल हैव टू डिटरमाइन whether I am going to calculate in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction, बराबर। कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, बट कैसे जाते हुए कौन से रास्ते पर वो पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, बराबर। कैलकुलेट क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे जाते हुए करना है, क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वो डायरेक्शन पहले डिटरमाइन करनी है। तो ये डायरेक्शन ऐसे हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब इंटरनली ऐसे शो कर देंगे दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस merely depends upon my wish, बराबर। मुझे अगर ऐसे करना है तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगी, कोई और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी सॉल्व करेगा, देन ऑल्सो द आंसर वुड बी सेम। तो इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर के ऊपर, बट जो एक बार डिसाइड किया वो पूरी कैलकुलेशन तक वही रखना पड़ेगा, बराबर। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर आई मे हैव टू डील विथ टू लूप्स, मैंने बताया ना, जैसे ये प्रोसीजर मैंने एक बार की, फिर मुझे दूसरा लूप भी लेना पड़ेगा, तो दूसरी बार करूंगी। अब जब सेकेंड लूप में ले रही हूं, तो सेकेंड लूप के अंदर मेरा मन करता है कि इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बराबर। ये भी पॉसिबल है, बट ये मैंने एक लूप के लिए ये डिसाइड किया, तो इस लूप के लिए मुझे स्टिक होके रहना पड़ेगा इस डायरेक्शन के ऊपर, बराबर। दो लूप्स के लिए डायरेक्शन अलग हो सकती है, एक ही लूप में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन के मैं ऐसे जाके कैलकुलेट करूंगी, राइट। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही सम के अंदर अलग अलग हो सकती है, एक ही लूप में अलग नहीं रख सकते, बराबर। देन फोर्थ, you will come across that there is a resistor and across that resistor the current is passing from left to right, बराबर। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, डॉटेड में जो शो की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द कैलकुलेशन। बताया ना मैंने, जैसे ये पूरा है तो अभी मैं इतना सा पोर्शन यहाँ पर शो कर रही हूँ, इधर कुछ एपरेटस होंगे वो बताया ना, अब इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है वो मैंने अभी यहाँ पर शो किया। मैं कैलकुलेशन ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैं अभी कैलकुलेशन कैसे जा रही हूँ, यहाँ से फिर इधर, फिर ऐसे गई ना, तो ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन, वो कैलकुलेशन की डायरेक्शन यहाँ पर डॉटेड शो की, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसी है और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो उसमें जो डेल्टा V आएगा वो मुझे कैसा लेना है, नेगेटिव, नेगेटिव लेना है। वाई, अब ऐसे क्यों, और इससे उल्टा अगर हुआ, करंट ऐसे आ रहा है और मैं कैलकुलेशन इसी डायरेक्शन में कर रही हूं, तो इसमें पॉजिटिव लेना है। वाई, तो इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज लोअर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी। तभी करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा,
सॉरी इधर हायर होगा और इधर लोअर होगा, हाई एंड यहाँ पर लो, बराबर। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, हाई टू लो डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब आप क्या ले रहे हो, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली लेस है, इनिशियली हाई था, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें देखो कैलकुलेशन, इसमें पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच में ये इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, मतलब इधर हाई, यहां पर लो पोटेंशियल। नाउ फाइनल पॉइंट इज P, तो Vp माइनस VQ करना है आपको। तो इसमें आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, या इस डायरेक्शन में, तो ये फाइनल पॉइंट हुआ, फाइनल और ये इनिशियल, तो हाई माइनस लो, हाई माइनस लो मतलब पॉजिटिव आएगा, इसलिए डेल्टा वी पॉजिटिव, राइट। सो यहां पर हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ current, in the direction of calculation, या फिर लिखेंगे if the direction of calculation and current are same, डेल्टा वी सेम अगर हुए तो डेल्टा वी नेगेटिव, और सेम वे में डिफरेंट हुए या ऑपोजिट हुए तो डेल्टा वी इक्वल्स टू पॉजिटिव, बराबर। तो सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, आई, सपोज ये आर है, तो आप जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर तक जाओगे ना, तो आप क्या लिखोगे, माइनस आई आर, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओगे तो आप लिखोगे माइनस आई आर, और इसमें भी ये अगर आर हुआ तो आप क्या लिखोगे, माइनस नहीं बट के प्लस आई आर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, जब भी रेजिस्टर आया तब आपको आई आर लिखना पड़ेगा, उसके साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शंस, direction of calculation and direction of current, ठीक है। Now it may also happen that you will come across some cells, सेल रास्ते में आए तो, जैसे कैलकुलेशन करते 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 लूप के अंदर रेजिस्टर आया, वैसे ही कैलकुलेशन करते करते कोई सेल आ गया, तो ऐसे मैं सर्किट में शो कर दूं, ये आ गया एक सेल, और मैं कैलकुलेशन करते हुए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रही हूं, ये एप्सिलॉन है। करंट चाहे यहां से लीव हो रहा है, ऐसे हो कहीं पर भी, इसमें करंट की डायरेक्शन देखनी नहीं है। जब भी सेल आया तब आपको सिर्फ इनके टर्मिनल्स देखने हैं, सेल के टर्मिनल्स, और सेल के कौन से टर्मिनल के टुवर्ड्स जा रहे हो वो देखना है। सी दिस टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल and this negative is at lower potential, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, बराबर। तो डेल्टा वी जब यहां पर लेंगे तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, हम इस तरफ गए, यहां पर थे तो फाइनल, फाइनल में क्या है, लो, इनिशियल क्या था, हाई, तो लो माइनस हाई तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें आप याद कैसे रखोगे, कौन से टर्मिनल के टुवर्ड्स गए, हम लोग कौन से टर्मिनल के टुवर्ड्स गए कैलकुलेशन करते करते, नेगेटिव के टुवर्ड्स गए ना, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स गए, तो जिस टर्मिनल के टुवर्ड्स गए उसकी पोलैरिटी लगानी है डेल्टा वी में। तो इफ यू कम अक्रॉस सम सेल, then for delta V you will be writing in such a situation as minus epsilon, बराबर। उसमें फिर आई आर या कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको एप्सिलॉन लिखना है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखनी है। इससे उल्टा क्या होगा कि ये ऐसे सेल है और हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है, तो हम इस तरफ से इस तरफ गए, कौन सी तरफ गए, लो से
हाई के टूवर्ड्स गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाई में से लो माइनस किया तो पॉजिटिव आएगा, सो डेल्टा वी इज पॉजिटिव प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो ये एक डायरेक्शन के ऊपर से हमें प्लस आई आर माइनस आई आर समझ में आएगा। सेकेंडली प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन क्या है, क्या लेना है वो समझ में आएगा। तो इधर हमें लिखना पड़ेगा कि गिव polarity of terminal towards which we are moving for calculation give the polarity of terminal of cell towards which we are moving for calculation, बराबर। जिस टर्मिनल के टूवर्ड्स हम गए, टूवर्ड्स, उसकी हमें पोलैरिटी एप्सिलॉन को देनी है, बराबर। टू द EMF of that cell, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो अब आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो सेम रहेगा। जैसे मैंने बताया वैसे आपको सिर्फ इतना एक बार करने से आंसर ना भी मिले, नहीं भी मिलेगा, बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप्स एक बार आइडेंटिफाई किया, उसके लिए एक इक्वेशन आएगा, नंबर ऑफ अननोन्स एक ही होगा तो सॉल्व हो जाएगा, अननोन्स ज्यादा होंगे तो आपको फिर से ये सेम प्रोसीजर दूसरे किसी लूप के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। फिर तीसरे लूप के ऊपर अप्लाई करो, अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, 3 अननोन्स है, तो यू विल रिक्वायर 3 इक्वेशंस, सो बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू विल गेट 1 इक्वेशन। फिर सेकेंड बार यही आपने किया तो सेकेंड इक्वेशन यू विल ऑब्टेन, थर्ड टाइम किया तो थर्ड, बराबर। तो 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगे, फिर 3 जो अननोन्स होंगे वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, बट प्रोसीजर सभी लूप्स के लिए यही रहेगी, बराबर। तो चलो इतना आप लिख लो स्टेप्स। नाउ हियर look at this example. We have taken this example where we will be applying the steps that we have seen for application. We will be applying KVL to this loop. Okay, so what was the first step? First step was to identify a closed loop. So here this is the example where I have already taken a closed loop. ये actually एक नेटवर्क जो होगा ना उसका एक पार्ट है। सी यहाँ पर इधर आगे कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन में से मैंने इतना सा पार्ट लिया which forms a closed loop, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसीजर फर्स्ट जो स्टेप था ये स्टेप हमने ले लिया, आइडेंटिफाइंग द क्लोज्ड लूप। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप के अंदर डिटरमाइन द डायरेक्शन। अब इसमें से करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन अभी हमने रैंडमली शो कर दी है कहीं पर, बराबर। कि सपोज I1 ऐसे, I2 ऐसे, I3, I4, I5 की अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पर शो ऑलरेडी गिवन है, ऐसे अभी हमने ले लिया, राइट। सी यू कैन सी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव में से इधर से लीविंग है, ये कन्वेंशनली जैसे लेते हैं वैसे ही हुआ। बट यहाँ पर देखो I6 में से यहाँ से ऐसे लीविंग है, तो आगे कुछ अरेंजमेंट ऐसी होगी, आगे कुछ कनेक्शन ऐसे होगा कि जिससे इस बैटरी का चार्जिंग हो रहा होगा, इसलिए इसमें से नेगेटिव जो है उसमें से निकल रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ दिस बैटरी विथ EMF एप्सिलॉन 1। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, उसमें हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कैलकुलेशन इधर से, सपोज कि ये A पॉइंट है, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हुए जा सकते हैं। मतलब कि यहां से पहले इधर कैलकुलेट करेंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और वापस A पॉइंट पे आएंगे, या तो यहां से A से नीचे जाएंगे और फिर इधर, फिर इस ब्रांच, फिर इस ब्रांच, ऐसे जाएंगे। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है कैलकुलेशन की
For now, I wish that I want to calculate it in clockwise direction. ठीक है, क्लॉकवाइज में ये हम लोग करेंगे। तो क्लॉकवाइज में A से स्टार्ट किया। अब A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना, कुछ पोटेंशियल तो होगा। लेट्स से दैट पोटेंशियल इज VA, राइट। अब VA से हम आगे गए तो रास्ते में क्या आया, रेजिस्टर आया। रेजिस्टर आया इसलिए आपको उसमें से पास होने वाला करंट और R1 उतना लेना है। IR will be give me the potential difference. This may be gain in potential or decrease in potential, बराबर, loss in potential। ये कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये IR जितना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पहले मैं सिर्फ साइन दिए बगैर क्या क्या पोटेंशियल्स है वो मैं लिख लेती हूँ, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन रेजिस्टर आया इसलिए मैं लिखूंगी I2 R2, उसमें से पास होने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस I2 R2। फिर क्या आया, सेल। तो सेल आता है तो खाली उसका EMF लिखना है, उसमें से फिर करंट नहीं लिखना है। दिस इटसेल्फ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। फिर रेजिस्टेंस अगेन आया तो I3 R3। देन आफ्टर इसमें से I करंट पास होता हुआ शो किया है, बट वेदर देयर इज एनी रेजिस्टेंस और नॉट, नहीं है। तो इसमें I4 फिर R क्या, कुछ भी नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट सेल इज देयर, तो सेल है तो सेल के लिए खाली क्या लिखना है, उसका EMF। एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन 2 लिखा। देन रेजिस्टेंस अगेन is coming across our way, so I5 R4 has to be written, I5 R4। then after एक सेल आ गया, सेल का EMF एप्सिलॉन 3 and resistance is R5, तो I6 R5 will be the potential difference। then after you are coming back to point A, so when you come back to the original initial position or original point, then you will find that the potential is again same। तो VA से शुरू किया था और VA पर पहुंचे तब VA ही हमें मिलेगा, ना रास्ते में कुछ हमने गेन किया ना ही कुछ हमने लूज किया। whatever is the gain that itself has been lost in our path only, बराबर, जो भी एक्वायर किया होगा वही लूज कर दिया होगा। क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, उस जैसा कुछ सिनारियो यहाँ पर हो रहा है, बराबर ना, जो भी लेके आए थे बस वही लेके यहाँ से जाना है। तो VA इनिशियल और एंड पॉइंट पे सेम हो गया। नाउ द थिंग कम्स एट वेदर शुड आई पुट पॉजिटिव नेगेटिव, क्या यहाँ पर लिखना चाहिए। तो चलो वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डायरेक्शन के साथ हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों हमें देखनी है। इफ बोथ द डायरेक्शन आर सेम तो माइनस लिखना है जैसे पहले बताया, और ऑपोजिट है तो प्लस लिखना है, राइट। चलो तो A से हम लोग इस पॉइंट पर गए, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो दिस, सो बोथ आर सेम डायरेक्शन, देन IR विल बी गिवन अ -1। यहाँ पर कैसा पोटेंशियल होगा, हाई, यहाँ पर कैसा पोटेंशियल, लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब लो माइनस हाई, तो वो नेगेटिव आएगा, बराबर ना। ये चीज अब मैं हर बार नहीं बोलूंगी, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सेम डायरेक्शन तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, राइट। तो यहाँ पर ये आ गया माइनस। फिर आगे यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए तो IR और करंट की डायरेक्शन और ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगेन सेम, तो उसमें भी नेगेटिव। फिर एप्सिलॉन के लिए क्या बताया था, एप्सिलॉन के लिए बताया कि यू हैव टू सी टुवर्ड्स विच टर्मिनल यू आर मूविंग। तो हम कौन से टर्मिनल के टुवर्ड्स गए, हम गए नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स, बराबर। तो नेगेटिव टर्मिनल माइनस वाला है तो माइनस मतलब ये हो गया, बराबर। हायर टू लोअर गए, हायर टू लोअर तो लोअर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें भी नेगेटिव आ गया।
फिर अगेन I3 R3 सेम डायरेक्शन तो माइनस, एप्सिलॉन टू कौन से टर्मिनल के टूवर्ड्स, नेगेटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स तो माइनस। फिर I5 R4 हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो पॉजिटिव। फिर अगेन एप्सिलॉन 3 हम कौन से टर्मिनल के टूवर्ड्स गए, पॉजिटिव के टूवर्ड्स गए, तो यहां पर एप्सिलॉन 3 में आएगा पॉजिटिव। I6 R5 दोनों डायरेक्शन कैलकुलेशन की करंट की ऑपोजिट, इसलिए ये पॉजिटिव, बराबर। तो अब यहां पर VA विल गेट कैंसल्ड आउट, माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस I3 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस I5 R4 प्लस एप्सिलॉन 3 and plus I6 R5 equals to 0. So these terms are what? These are delta V's across each branch. हर एक ब्रांच में ये डेल्टा V है, तो हर एक डेल्टा V का समेशन क्या आ गया? 0। यही था सेकेंड लॉ किरचॉफ का। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव करके, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये प्रूव करके दे दिया। अब ये तो इतने सारे करंट है, इतने सारे मुझे एग्जाम्पल लेना था, इसलिए मैंने सेल्स भी काफी सारे एक ही लूप के अंदर डाल दिए, बराबर ना। तो सपोज इसमें से R की वैल्यू आपको पता होगी और एप्सिलॉन EMF ऑफ ईच सेल आपको पता होगा, तो अननोन क्या बचेगा? अननोन ये सारे करंट बचेंगे, बराबर। तो आपके पास इस इक्वेशन के थ्रू 1, 2, 3, 4 एंड 5 अननोन्स आर देयर। तो ऐसे आप फिर आपको इस यहाँ पर नेटवर्क और आगे होगा, उसमें से कुछ एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जितने अननोन करंट्स है वो सारे करंट के लिए आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाने हैं। फिर क्या करना है? मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स में क्या? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच एवर इज कन्वीनियंट। तो आपको सारे करंट्स जो है हर एक ब्रांच में से उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। दिस इज क्वाइट इजी, और इसके एप्लीकेशन है, उसके जो सम्स होंगे वो स्टेट बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो ये आपको प्लस माइनस का अगर समझ में आ गया, अंदाजा आ गया, लूप तो सीधा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक स्कोरिंग जो पार्ट है वो ये हो जाता है, बराबर। इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखो इसमें, ये जो इक्वेशन बना प्लस माइनस देने में बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, उस हिसाब से देना, बराबर। चलो नोट करो ये। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will see an apparatus which we will be using in your experiments also, and the name of the apparatus is meter bridge.